Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 900. 1st of May 1988, Wise in West Jamaat Khana of Chicago. مولانا حضرت امام پہ درود و سلام. اللہم صلی اللہ. ایک عابد تھے، اس نے دعا مانگنی شروع کی. کوئی روحانی چیز مانگتے تھے. بہت عرصہ ہو گیا اور خدا نے اس کی دعا کا جواب نہ دیا. ایک دن رسول اکرم کی خدمت میں جا کے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے میں مجیب الدعات ہوں، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا. میں سمیع الدعا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. اور اتنا عرصہ ہوا خدا نے ابھی تک میری دعا منظور نہیں کی. اللہ نے فرمایا اے نبی اس کو کہو کہ تو جب دعا مانگتا ہے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے تو دعا مانگتا ہے، اور میں انتظار کرتا ہوں کہ دوسری دفعہ کب تو دعا مانگے. اس لیے میں تمہاری دعا سنتا ہوں کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو یہ دعا مانگنا چھوڑ دے گا. مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا ہم ایسا سمجھتے ہیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. خدا انتظار کرتا ہے کہ وہ ہمیں وہ چیز جو ہم مانگتے ہیں اس وقت دے جب ہم اس چیز کے لائق بن جائیں. بعض دفعہ ہم ایسی چیز مانگتے ہیں کہ خدا کبھی ہمیں اسی وقت دے دے تو شاید ہم بھول کر لیں، غلطی کر لیں، یا وہ چیز ہمارے لائق نہ رہے. اس لیے خدا تعالی دعا تو سنتا ہے لیکن قبول نہ کرنا یا قبول کرنا وہ بہتر جانتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ آگ کی طرف ہاتھ ڈالتا ہے. اس کو اچھا لگتا ہے کہ یہ کوئلے اور آگ کے شعلے بہت بھلے لگتے ہیں، مگر ماں یا باپ اس کو آگ تک پہنچنے نہیں دیں گے. ہسٹری کے اندر ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بچوں کی ضد کے اوپر لکھی گئی، کیونکہ بچے میں ضد کا جو مادہ ہے وہ حقیقت میں اس لیے ہے کہ اس کے اندر انگلش میں ہم کہتے ہیں پرسیویئرنس، اردو میں اس کو کہتے ہیں استقلال، مستقل مزاجی، کہ ایک چیز کے پیچھے پڑ جانا تو پھر ایک چیز کے پیچھے پڑ جانا اور جب تک وہ حاصل نہ ہو چھوڑنا نہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرسیویئرنس. یہ جو مستقل مزاجی ہے یہ ایمان کی ایک نشانی ہے اور ہمت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جو مومن ہوتا ہے
وہ بڑا مستقل مزاج ہوتا ہے. وہ اپنی فیلیور کو، اپنی ناکامی کو برا محسوس نہیں کرتا. کبھی مومن ناکام ہوتا ہے تو ناکامی اس کی ہمت کو توڑ نہیں سکتی. مومن کہتا نہ صحیح، ایک دفعہ نہ صحیح دوسری دفعہ صحیح، میں چھوڑنے والا نہیں. یہ ایمان کی نشانی ہے اور یہ ہمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ہمت والے لوگ ہی ہیں کہ جو مستقل مزاج یا بالکل اپنے ارادے کے ڈٹرمائنڈ ہوتے ہیں، اور آخر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. مولا علی علیہ السلام مرتضی فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانیوں میں 3 نشانیاں ہیں کہ جس سے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. یعنی حضور نے ایمان کے 3 حصے کیے کہ یہ 3 حصے مل کے ایمان کو کامل بناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ ہے ہمت. ہمت بڑی ایمان نشانی، بھائی بڑی راکھو اپنی ہمت، جس کسی کی ہمت بڑی اس پہ ہوئے رب کی رحمت. تو ایک اور جگہ فرماتے ہیں وہ 3 حصے فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کے 3 حصوں میں ایک سخاوت ہے، ایک ہمت ہے، اور تیسری چیز ہے انسان کی ایمان کی، محبت کی، اعتقاد کی قوت. تو فرماتے ہیں کہ سخاوت ایمان کی تہائی ہے، 1/3 جو ہے سخاوت ہے. سخاوت ایمان کی تہائی ہے نہیں. میں یہ پاٹ بھول گیا ہوں، مگر یہ 3 چیزیں رسول اکرم کی حدیث میں بھی ہیں کہ 3 حصوں میں ایک سخاوت ہے، ایک ہمت ہے، ہاں ایک وفاداری ہے. تو یہ 3 چیزوں سے ایمان بنا ہے. جس کسی نے ان 3 چیزوں پہ عمل کیا اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. وفاداری یعنی حضرت امام کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا، بیعت کی، تو کچھ بھی ہو جائے، جان بھی چلی جائے، مگر امام کی وفاداری جو ہے وہ نہ مٹے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی جو کچھ بھی کمائی کرتے ہیں یا ہماری زندگی میں کچھ ہے تو بڑا دل رکھ کے کنجوس اور بخیل نہ بن کے ہم سخی بنیں، بڑے دل والے بنیں، دوسروں کی خدمت گزاری کریں، جو اسماعیلی مذہب کا ایک خصوصی مولانا حضرت امام فرمایا ہے، ایک عمل ہے کہ جو دوسری قوموں کے اندر نہیں، کہ ہم لوگ اپنی جماعت کی خدمت کرتے ہیں. یہ جو خدمت ہے نا، یہ ایک قسم کی سخاوت ہے. رسول اکرم نے فرمایا جب اس سخاوت کے اوپر، تو ایک صحابی نے پوچھا یا نبی میرے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا سخاوت کروں؟ حضور نے فرمایا اگر تم کسی کے حق میں نیک دعا بھی مانگو گے نا تو وہ تمہاری سخاوت ہے. یہاں تک کہ تم کسی مومن کو مل کے ہنسو گے تو تمہاری جو ہنسی مسکراہٹ ہے یہ بھی سخاوت ہے. ایون اے اسمائل از چیریٹی ان اسلام. مطلب کہ ایک دوسرے کو ملو تو منہ بنا کے نہیں مگر خوش دلی سے ملو. اور تیسری چیز ہے وہ ہمت ہے. تو یہ 3 چیزیں ایمان کو کامل بناتی ہیں. یہ 3 چیزیں مومن کی نشانی ہیں. تو مومن جو ہے وہ بڑا مستقل مزاج ہے، وہ مانگتا رہتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو خدا ضرور پوری کرے گا. کیوں کہ خدا جانتا ہے میرا مومن مجھے یاد کرتا ہے. اس لیے اپنے مذہب کے اندر ہمیشہ پکے اور مستقل رہو اور اپنے ایمان کو کامل ہونے کی دعائیں مانگتے رہو. ہمارے مذہب کی خوبیوں میں ایک یہ خوبی ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اور اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ میرے مولا کا حکم ہے.
مولا فرمایا گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ ادرس. اپنا راستہ چھوڑ کر اپنی عادت بھلا کے بھی دوسروں کی مدد کرو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. افریقہ میں کیگوما ایک جگہ ہے تنزانیہ میں, چھوٹی سی جگہ کے جہاں 200-250 اسماعیلی رہتے تھے, ابھی 30-35 ہیں. اور یہ ہے لیک ٹانگانیکا کے کنارے پہ, اور دوسرے کنارے کے اوپر ازمبرا ہے. اس وقت یہ کونگو بیلجیم تھا. یہاں ایک آدمی جو آج کل ٹورنٹو میں رہتا ہے, دار السلام میں مولا جب بھی آئے 48 میں, سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں, تو اس نے مہمانی رکھی. تو ماں باپ نے اس کو فرمان کیا کہ ادھر تمہارا بزنس کیا ہے؟ کہ کہتا ہے خدا میرا بزنس کریانے کا یعنی پروڈیوس کا بزنس کرتا ہے. ماں باپ فرمایا دیکھو اگر کوئی آدمی آئے تمہاری مدد مانگے کہ کونگو جانے کے لیے اس کو امیگریشن وغیرہ میں ہیلپ کرو, تو ماں باپ فرمایا جس طرح آج تو نے مہمانی رکھی ہے ایسا ہر مومن کی مدد کرو گے تو میں تمہاری ایک مہمانی قبول کروں گا. اور اس کا مولا نے بہت اس کو فائدہ بھی دیا, بڑا انفلوئنشل بنا, مالدار بنا. پھر مولا نے اس کو کاؤنٹ کا ٹائٹل دیا. آج کل ٹورنٹو میں رہتے ہیں. تو امام بہت خوشی ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اور ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے, سیکریفائس کرنی پڑتی ہے ٹائم اور پیسے کی, مگر مولا بہت راضی ہوتا ہے. اور یہ اسماعیلی جماعت کی ایک خوبی ہے. دنیا بھر میں کہیں بھی یہ خوبی کسی اور جماعت میں اس درجے کی نہیں ہے کہ جس درجے کی ہمارے اندر ہے. میری رائٹ سائڈ میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں. ہماری ہر جماعت میں مکھی ہوتے ہیں, کامڑیا ہوتے ہیں, کونسلوں کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, جماعت کے اندر والنٹیئر ہیں, اور کتنے ہی بہت سے لوگ ہیں جدی جدی مختلف کمیٹیوں میں کام کرتے ہیں. کسی کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. تنخواہ تو چھوڑ دو, ہم ایسے ہیں کہ جماعت کی فری سروس کرتے وقت ضرورت پڑتی ہے تو کھیسے سے پیسے بھی خرچتے ہیں. یہ چیز آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اور ہم جو کرتے ہیں محبت سے کرتے ہیں, مولا کے لیے کرتے ہیں. ہمارا ایم مولا کو راضی کرنا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا علی نبی کے جو جانشین ہیں ان کے ساتھ اگر تم محبت کرو تو ساری دنیا کی سب باتیں اس میں سما جاتی ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایمان کی نشانی کے طور پہ مولانا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حب علی ایمان, علی کی محبت ہے یہی ایمان ہے. بغضہ کفر و نفاق, اور علی کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہے اور نفاق یعنی بے دلی پیدا کرنے والا ہے. نفاق جو ہے وہ توحید کی اپوزٹ ہے. تو نبی کہتے ہیں علی سے جو پیار کرتا ہے یہی ایمان ہے, یعنی علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. اور علی سے جو بغض رکھتا ہے فرمایا وہ کافر ہے اور نفاق پیدا کرنے والا ہے. تو ہم جو کرتے ہیں مولا کی محبت کی خاطر کرتے ہیں. ایک دن 78 کی بات ہے, برابر 10 سال ہوئے. کینیا میں نیروبی شہر ہے, تو ہمارا ایک بڑا دن آیا نوروز کا. اول سفرہ شروع ہوا. ہماری ہر جماعت خانے کے اندر اول سفرہ ہوتا ہے. اول سفرے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی جماعت خانے کے اندر لوگ مہمانیاں وغیرہ لے کے آئے ہیں یہ سب ملا کے سب سے پہلے جماعت میں سے کون حضر امام کو کھلاوے, تو جس کو یہ ثواب مل چاہیے وہ اول سفرہ لیتا ہے. اول سفرہ شروع ہوا. جو سفرہ کھلا رہا تھا اس نے شروع کیا 5000 شیلنگ. آواز آئی بھائیوں میں سے, عورتوں میں سے 50,000 شیلنگ. مردوں میں سے آواز آئی 1,00,000 شیلنگ.
ادھر سے آواز آئی 2 لاکھ شلنگ. 5-10 ہزار کی بولی نہیں، لاکھ کی بولی. مردوں میں آخر 11 لاکھ شلنگ میں سفرہ بند ہوا. 11 لاکھ شلنگ کینیا کا. جب آدمی اٹھا، خاکی کپڑے پہنے ہوئے معمولی سا آدمی تھا، کوئی یہ نہیں دھار سکے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے. 11 لاکھ شلنگ سفرہ آیا مکھی کے پاس. مکھی نے کیا کہا؟ خانہ ودان، مولا سکھی آباد رکھے، ایمان سلامت رکھے، نیک مراد پوری کرے. کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. یعنی دنیاوی نظر سے اس کو کوئی میڈل نہ ملا، اس کو کوئی جبہ نہیں ملا، منہ کے بول ملے، خانہ وعدہ، اور وہ خوش ہو گیا. 11 لاکھ شلنگ دے کے اس کو خانہ ودان ملا. نہ کوئی زمین ملی، نہ کوئی موٹر ملی، نہ کوئی مکان ملا، خانہ ودان ملی. اور وہ کیسا خوش تھا. 10 لاکھ شلنگ تک بڑھنے والی عورتوں میں سے کون تھا؟ اس کی ہی ماں تھی. اب خیال کرو، غیروں کے سامنے، یعنی وہ جو اسماعیلی نہیں ہیں، ان کو ہم یہ بات سنا لیں تو وہ بہت تعجب کریں. 11 لاکھ شلنگ دے دیے ایک خانہ ودان کے لیے. یہی ہماری مولا کی طرف محبت و ایمان ہے. ہم مولا کے اوپر فدا ہیں. ایسے تو کتنے ہی ہیں. اور ہمارے آگے کے زمانے میں لوگ اپنی تمام مال ملکت حوا کر دیتے تھے مولا کو، اور اس کو ہم نے نام دیا ہے سربند ہو جاتے تھے. ہمارے مذہب کی یہ جو خدمت کی جو توفیق اور مادہ ہے، یہ ایک عظیم عبادت ہے، بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ ادرس. مومنین ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اس میں اس کو تھوڑا خسارہ اٹھانا پڑے، خرچ کرنا پڑے، تو وہ جو کرے تو مولا کی مہمانی کا درجہ ہے. تو ہمارے مذہب کی خوبیاں ایسی بہت خوبیاں ہیں. دعائیں مانگنا دوسروں کے لیے بھی ایک خیرات ہے. مولا فرماتے ہیں تم اپنے لیے دعا مانگتے ہو، ٹھیک ہے، مگر تم جماعت کے لیے دعا مانگو. آج میں آپ کو ایک وہ چیز بتاتا ہوں جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. 1903 میں امام سلطان محمد شاہ کچھ گئے. کچھ میں مولا نے فرمان کیا کہ دیکھو، آج میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالا کرو کہ یا مولا میں خوش نصیب ہوں، میں تیرا احسان مانتا ہوں کہ تو نے مجھے اس جماعت اور دین میں پیدا کیا. مولا فرماتے ہیں ہر روز اس شکر گزاری کے لیے جماعت کے لیے 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو. مجھے یہ فرمان کہیں اور نہیں ملا، مگر میرے پاس کتاب ہے 1903 کچھ کے فرمانوں میں یہ فرمائی ہوئی ہے، اور پرنٹڈ فرمان ہے. لیکن کلام امام مبین یا دوسری جگہ کہیں کسی کو یہ فرمان کا پتہ نہیں. مگر میں جہاں جہاں جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں جماعت کے لیے بھی ہم 40 دانے روز پیر شاہ کے نکالیں تو یہ جماعت کے لیے ہمارے اندر دل میں محبت اور اتفاق پیدا کرنے کی چیز ہے، اور ہمارا احساس شکر گزاری ہے کہ ہم مولا کے احسان مند ہیں کہ اس جماعت میں، اس مذہب میں ہمیں پیدائش ملی، اور جماعت کے بھی محسن ہیں کیونکہ ہم جماعت کا ایک حصہ ہیں، ہم جماعت کا ایک انگ ہیں. تو جماعت کی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہے. وہ لوگ جو جماعت خانہ صاف کرتے ہیں، گٹ ماٹ کے جو برتن صاف کرتے ہیں، جو بتیاں وغیرہ لگاتے ہیں، جو والنٹیئر بن کے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں. ارے ایک نیچے زمین کے اوپر کوئی ٹکڑا پڑا ہوئے گندا، وہ آپ نے اٹھا کے گاربیج بیگ میں ڈال دیا تو یہ بھی خدمت ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی خدمت عبادت کو مضبوط کرتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے. تو ایک دوسرے کی محبت اتفاق ہمارے مذہب کی بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو کوئی مذہبی سوال ہو، آپ خوشی سے پوچھو، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. اور جس کو سوال کرنا ہے
وہ माइक में बोले ताकि सब लोग सुन सके। इबादत यानी बैतुल ख्याल के अंदर। हाँ बोलो, कोई बात नहीं। मुझे ये जानना है कि हमको जो बोल मिलता है वो सिर्फ बोल ही होता है, फिर हम जब इबादत में जाते हैं तो हमको उसका मीनिंग पता चलता है, मतलब क्या है, फिर उसके आगे जो होता है वो क्या होता है। देखो बेटे, बैतुल ख्याल की जो इबादत की चीजें हैं वो तुम्हारे और मौला के साथ डायरेक्ट ताल्लुक रखती हैं। इसलिए कभी एक आदमी को कोई चीज का तजुर्बा हुआ है, पहली चीज तो है कि वो बोल ही नहीं सकता कि उसको क्या तजुर्बा हुआ, वो दूसरों को कहा ही नहीं जा सकता, कोशिश करने पर भी अल्फाज उसका साथ नहीं देते। इसलिए हमको हमारे इमामों ने मना किया है कि इबादत में जो कुछ भी तुम्हें हासिल होता है वो सिर्फ तुम्हारे ही लिए है, तुम वो चीज किसी से कह नहीं सकते और कहना भी नहीं चाहिए। अगर कहोगे तो फौरन वो चीज गुम हो जाएगी और अंधेरा पैदा हो जाएगा। जो कुछ इबादत है वो सिर्फ तुम्हारे और उस मौला के दरमियान है। बाकी रहा जो बोल है, जब इमाम फरमान करते हैं, बोल देते हैं, तो बहुत दफा मौला खुद ही उसका मतलब भी समझाते हैं, और कभी मौला नहीं समझाते कोई वजह से या जल्दी जाने की वजह से, तो उस वक्त मौला के साथ जो मिशनरी होते हैं, जो मौला के साथ अटेंड करते हैं, ये उनका फर्ज है कि वो जमात को उसका मतलब बताएं। तो ये मतलब सबको जानना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया तो बस मौला के ऊपर भरोसा रखो, कभी न कभी उसका मतलब पता लग जाएगा। मगर जो कुछ भी मालूम होवे, बोल की निस्बत, बोल की बातें कहीं नहीं हो सकती, किसी के साथ भी नहीं हो सकती, माँ बाप बीवी बहन भाई शोहर कोई नहीं, इवन मिशनरियों के साथ भी नहीं। क्योंकि पहले जमाने के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इजाजत देते थे कि उनकी गैर हाजिरी में, यानी दुनियावी गैर हाजिरी में, मिशनरी जो होते थे उनके पास जाके खुलासे कर लेते थे। लेकिन हजरत इमाम ने 1976 के बाद मना कर दिया कि अब कोई नहीं बोले, क्योंकि बहुत से जो नए नए वाइज करने वाले पैदा हो गए, उन्होंने बहुत सी चीजें ना मालूम होने पर भी गप्पे मारनी शुरू कर दी। इसके लिए इमाम ने इस चीज को बंद कर दिया। अब किसी को हुक्म नहीं कि बोल दे सके या बोल की बाबत में कोई उसको समझा सके। हाँ, वाइजें सुनो आके इबादत के टाइम पे सुबह, और उन इबादत के अंदर वाइज में बहुत से इशारे होते हैं, और समझ लेते हो तो ठीक है, वरना मौला को कहो, या मौला तू मुझे राह दिखा, मुझे तू बता, उसको राजी करो, इंशाअल्लाह दिल रोशन हो जाएगा। ये इबादत के सिलसिले में है 1976 में जब हाजी इमाम की बदनामी हुई थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त मैं बैतुल ख्याल का आमल था। अच्छा, अब अपने वहाँ एक चिट्ठी बदलने की जो है उस वक्त ये अपने में है कि अभी अपनी किसी को बताने का नहीं है तो जिंदगी में अपने को क्या मिला जाते हैं। तो उस वक्त इस्माइली एसोसिएशन से आदमी भेजे गए थे, तो जिसको चिट्ठी बदलानी है तो उसको क्वेश्चन किए गए थे कि भाई तुमने क्या देखा इबादत में, तुमको क्यों प्रमोशन चाहिए।
ऑफकोर्स हम तो कामड़िया था, उसने हमें कुछ बताया नहीं और ना हमने अपने लिए भी कोई चीज मांगी। और ये आज इस बात से मुझे कहने का दिल हुआ कि ये जब एक तरफ अपने को आदमी मान की मना है कि तुम कुछ बताओ नहीं और अपन बता भी नहीं सकते हैं कि क्या है, फिर इसको क्यों क्वेश्चन किया जाता है कि भाई तुमको प्रमोशन क्यों चाहिए, तुमने क्या देखा, अब वो क्या बताएगा कि क्या देखा। इसी वजह से इमाम ने ये चीज बंद करवा दी। लेकिन इमाम के साथ जो उस वक्त ड्यूटी के ऊपर जो मिशनरी होता है उसको इमाम की तरफ से ये इजाजत होती है। ये नहीं बताया जा सकता कि इबादत में क्या मिला या क्या कुछ हुआ, लेकिन ये पूछा जाता है कि तुमने कोई चीज नफा पाया, तो पाया होगा तो कहेगा कि हाँ मैंने पाया, मगर क्या वो कहने की जरूरत नहीं। तो कहता है हाँ मौला ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, तो फिर उसको ऊपर के दर्जे की चीज जो मौला फरमान करता है उसको दी जाती है। मगर उस वक्त जो ड्यूटी के ऊपर मिशनरी है उसका ये हक है कि ये पूछे कि तुम्हें कुछ मिला, तो कहता हाँ मुझे मिला, या कहता नहीं मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। तो इन दोनों जवाबों के ऊपर उसको फर्दर बोल दिया जाता है। ऐसा भी हुआ है कि इमाम ने ये कह दिया कि अच्छा तुम जो तुम्हारे पास अभी बोल है उसको ही कायम रखो, ऐसा भी हुआ है। या इमाम कभी कह देते हैं अच्छा उसकी जगह ये दो, ये इमाम की फिर नवाजिश की बात है। मगर एसोसिएशन या तरीका बोर्ड की तरफ से जो भी आते हैं उनको किसी सब को ये हक नहीं होता। इवन जो बैतुल ख्याल के मुखी कामड़िया हैं उनका भी ये हक नहीं। और चिट्ठी बदलाते वक्त या बोल देते वक्त मुखी होवे, कामड़िया होवे, तरीका का प्रेसिडेंट होवे, काउंसिल का प्रेसिडेंट होवे, वारस होवे, काउंट होवे, दीवान इबू जैसे आदमी भी अंदर कभी नहीं आते, कभी नहीं। वो हमेशा बाहर रह जाते हैं। किसी को अंदर आने का हक नहीं सिवा के उन मिशनरियों को के जिनको अपॉइंट किया जाता है, और वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं और इन बातों को समझने वाले होते हैं। दूसरा सवाल है, अभी आपने जो फरमाया कि टुकड़ा बढ़ा दिया एक तरफ से इधर से जेंट्स में से लेडीज में, पर यहाँ अपने यहाँ नांदी होती है तो बहुत बार अगर समझना हो तो तुम्हारा धर्माधीश बचे थे ये नांदी करने वाले बोलते हैं। तो हमने कई को बोला कि भाई ये सही नहीं होता है, बोला का मान है जिस बढ़ने तो उसको क्या खाना आवे एक धर्माधीश जाए थे ना क्या नांदी करने वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभी क्या लफ्ज कहूं, कभी कभी शेख चिल्ली बन जाते हैं। केनिया में एक जगह मैं वाज करने के लिए गया। ऐसा अमूमन मुझे नांदी नहीं लेनी होती तो भी मैं जाके सुफरा देखता हूं, क्योंकि सुफरा देखना भी कि मौला के घर में मेहमानी आई ये भी एक सवाब का काम है। तो एक आदमी जो नांदी पे खड़ा था उसको एक प्लेट दी गई, उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि क्या पका है, समझ नहीं आई, और बहुत सी चीजें थी, चटनी थी, कुछ अचार वगैरह था, दही था। अल्लाह मेरे आ धूमधाम, कुछ पता नहीं लगा। इसके ऊपर बहुत से लोग हंस पड़े, मेरे से रहा ना गया। मैंने कहा देख ये मौला का माल है। सब बोलो अल्लाह मेरे मुझे पता नहीं कि क्या चीज है, जो कुछ भी है, मगर ये तुम धूमधाम कहां से ले आए हो। तो ऐसा नांदी करने वाले बाज दफा इस किस्म की शरारतें करते हैं, वो ठीक नहीं है। नांदी के अंदर जोक नहीं होना चाहिए। नांदी में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं कि कभी अच्छी भी नहीं होती, जो किसी को रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए। और भाइयों में से भाई होवे कि भाई बहन होवे, अगर उधर कोई सुफरा बढ़ रहा है तो इसको ये कहने का कोई हक नहीं है कि ये कौन बढ़ता है या एक ही फैमिली वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इमाम सुल्तान महमूद शाह का एक फरमान है, नांदी करते करते अगर उसको लगे कि ये चीज बिगड़ गई है, खाने के लायक नहीं रही, तो मामा फरमाया उसको गार्बेज में फेंक दो, और उसका कोई गुनाह किसी के ऊपर नहीं। जो नांदी वाला लेके आया है, अगर वो जानबूझ के नहीं लाया तो उसको इसका सवाब मिलेगा,
کیونکہ بہت دفعہ ناندی خراب ہو جاتی ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں بگڑنے لگی ناندی میں بھیج دو تو اس کو ثواب کے بدلے میں گناہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم کو مولا نے ہمارے پیروں نے یہ کہا جو اچھے سے اچھی چیز ہے وہ تم ناندی میں لاؤ. مہمانی مولا کی کرنی ہے نا. بعض دفعہ ناندی لینے والا گھر چلے جاتا ہے اور گھر جا کے دیکھتا ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو کھائی نہیں جاتی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھی چیز لاؤ اور جو ناندی کرنے والے ہیں وہ بھی عزت سے ناندی کریں. પગાવી દેવો કાંઈ નહીં, કોઈ પાપ નથી. અગર ખાશો તો બીમાર પડશો એ પાપ થઈ જશે. مولانا علی شاہ فرمایا جو آدمی ناندی خرید کے گھر لے جاتا ہے جتنے پیسے رقم سے اس نے ناندی خریدی ہے وہ رقم میں دسون کی بھول چک میں لکھتا ہوں. اور جو آدمی اپنے گھر سے ناندی لے کے آتا ہے اس کی جتنی رقم ہوتی ہے وہ پیسے بھی دسوند کی بھول چک میں، دسوند کی بھول چوک میں ریپیٹ کرتا ہوں. وہ دسوند کا پارٹ نہ سمجھے کہ میں نے یہ ناندی دی ہے نا اس کے $2 آئے ہیں تو دسوند میں سے نکال لے. ایسا نہیں، یہ تو مہمانی ہے. لیکن دسوند کی بھول چوک اگر اجانی ہو گئی تو مولا اس کو اس میں کریڈٹ دیتا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنی وائف نے بتایا کہ مولانا رومی کی جو حدیث مثنوی ہے وہ پڑھو تو وہاں قرآن کا ایک ایسس میں مل جاتا ہے. تو اور جیسے کہ شمس طویل اور ایسی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن ہم اس کتابوں پر کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں. مجھے بہت کوشش کی لیکن امام سلطان محمد شاہ کا یہ فرمان ہے کہ تم مثنوی مولانا روم پڑھو. اور مثنوی مولانا روم اصل میں تو فارسی میں ہے لیکن ابھی انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے. یو کین گیٹ اٹ. وہاں سے مل سکتی ہے لیکن لندن کی ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ڈورمنٹ ہے. 12-13 سال ہوئے انہوں نے جماعت کو کچھ نہیں دیا، بالکل سوئے ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی چیز نہیں ملے گی. مگر ایسے بہت سے بک شاپس ہیں ادھر شکاگو جیسے بڑے شہر میں بہت بڑی بڑی بک شاپس ہیں. وہاں ان کو جا کے کہو کہ مجھے رومی کی مثنوی انگلش میں ٹرانسلیشن چاہیے، 1-2 مہینے کے اندر وہ منگا دیں گے. مجھے ادھر ایک کتاب چاہیے تھی، 3-4 برس پہلے میں آیا تھا تو شبیر قاسم کو میں نے کہا بھائی یہ کتاب مجھے چاہیے. وہ کتاب کا نام تھا دی ورلڈ پریڈکشنز بائی کیرو. تو کچھ ٹائم کے بعد وہ کتاب مل گئی. مکھی صاحب آنسر دیتے ہیں پلیز. ہاں قاضی پبلیکیشن مکھی صاحب بولتے ہیں خبر. There are quite a few public libraries. Almost all the libraries, if you put in request, the name of the book and the author, they will produce for you from any part of the country, any part of the world. تمہیں بھوک لگی ہوئے تو کیا کرو گی؟ ایک ریسٹورینٹ بند ہوئے گا تو دوسری ریسٹورینٹ میں، وہ بند ہوئے گا تو تیسری ریسٹورینٹ میں، کدھر نہ کدھر کھانا مل ہی جائے گا. لاسٹ ویک میرے ساتھ ایسا آپ نے کچھ دوستوں نے میرے بچے لے گئے
काम और उन्होंने मुझे एक मंदिर के अंदर ले गया। मैं उनके साथ गया। उन लोग पहले वो मंदिर में गए थे और उनको कुछ तुलसी के पत्ते से पुजारी ने उनको मना कर दिया था। फिर दूसरी बार मुझे इन लोग लेके गए, मुझे बताया नहीं था, मैं उनके साथ किया। बोला पुजारी पत्ते देगा, मना नहीं करेगा। तो हम लोग वहाँ उनकी पूजा में शामिल हुए। पूजा पूरी हो गई, पुजारी चले गया। तो जो कीर्तन करता है ना, मैंने उससे जाकर पूछा था मुझे पत्ते चाहिए। तो वो बुरा था, तो बताया कि पुजारी दे सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता। तो पुजारी फिर अंदर से बाहर आया, से मांगे तो उसने तुलसी के पत्ते दिए। वो आदमी जिसको कहता था वो पत्ते लिया, उसको मैंने दिया, उसमें से मैंने चखा भी तुलसी का क्या पता नहीं। तो ये चीज करना चाहिए। फिर मैंने उसको पूछा कि ये तुमने क्यों किया और क्या है। मुझे बताया कि मैं मेडिकेशन के लिए ले जा रहा हूँ। तो मैंने उससे बताया कि इनकी लॉरेंस को बुला उससे मिलती है तो उससे मुझे भाव नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, क्योंकि तुमने कोई पूजा तो नहीं की उधर जाके। मगर जो तुलसी है ना, हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं मजहबी नजर से। और तुलसी के जो पत्ते हैं और उसके फूल हैं, उसके फूल तुख्म रिहा की तरह हैं। पता है, हम लोग जब ये शरबत बनाते हैं तो दूध में तुख्म रिहा डालते हैं। ये असल में फारसी लफ्ज है, तुख्म रिहा, और ये बड़ी अच्छी दवा है। हम किसी चीज की पूजा नहीं करते सिवा अजर इमाम की, लेकिन तुलसी का पत्ता खाने से पेट को बड़ा फायदा होता है। लेकिन मंदिर में जाके तुमने कभी कोई नमन नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े तो कुछ नहीं, लेकिन कभी वहां जाके तुमने ये काम किया है तो वाकई बुरा किया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा तो नहीं किया होगा। खाली मंदिर में जाने से कोई नुकसान नहीं। चर्च में जाओ, जाने वाला था, उसको बाहर से ये चीज मिल सकती थी, तो मंदिर में गया। हो सकता है कि उसको ऐसा एतकाद हो कि मंदिर रूहानी जगह, मजहबी जगह है, वहां से मैं चीज ले लूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। हिंदू था कि इस्माइली था? तो उसने बड़ा गुनाह किया है। मेरे साथ ये चीज वाकया कैलिफोर्निया में शुरू हो गया था। मैं कैलिफोर्निया के अंदर स्टडी ग्रुप में बैठता था, तो मुझे लोग पहले लेके गए, बोले कि हम लोग आज वेनिस बीच जाने का प्रोग्राम है। और वहाँ पर 3 मंदिर का एक ग्रुप था, उनका जो स्पिरिचुअल लीडर होना का होता है, उन लोग सब थे। उन लोग का ये गाइड था, हम लोग मुझे ले गए वहाँ। मुझे पता नहीं था, मैं गया उनके साथ। मैं कभी भी गया, मेरे को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उन लोग ने पहले मुझे बताया नहीं था। और उसके बाद ये हुआ कि 2 आदमी मुझे जिन्होंने ले गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, एकदम वो पेट से लंगड़े हो गए, प्रोसेस में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अभी मंदिर में जाने की वजह से तो उसका टांग शायद न टूटी हो गई, वो तो होने वाला था, हो गया। तुम्हारे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं, मैं हर बार उधर जाता हूँ, वो ग्रुप से हर बार मेरा जाना होता है। हाँ, मगर हर बार उस ग्रुप के साथ तुम्हें जाने का मकसद भी क्या है, जरूरत भी क्या है? नहीं, यानी कि मैं अपने आप से नहीं जाता हूँ, लेकिन ऊपर मुझे वहाँ ले जाता है। यानी हथकड़ी डाल के ले जाता है। मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती तो नहीं करता ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यूरियोसिटी के लिए जाना और बात है। अगर ये दूसरों की मजहबी जगहों के ऊपर जाके, हो सकता है हमारी कोई नियत खराब हो जाए, बेअदबी हो जाए, या हम उनको रिड्यूक्यूल करें। हम जिस चीज को मानते नहीं है वहां जाने की हमें जरूरत भी नहीं है। न किया जाए वो ज्यादा अच्छा। अगर नियत खराब हो गई तो इबादत में नुकसान होता है, लेकिन अगर तुम्हारी नियत खराब नहीं तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। यानी क्या फायदा हुआ? इबादत में फायदा हुआ तो तुमने गलती की है। मैं जानबूझकर नहीं जाऊँगा, तो
تو مجھے کوئی آدمی پوچھے چلو میرے ساتھ، تو میں اتنا تو پوچھوں کہاں لے جاتے ہو؟ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، دوستی کیا نہیں جانا زیادہ اچھا ہے، اور زیادہ اچھا۔ شادی کیا تم نے؟ اگر تم نے شادی کی ہوتی تو تم یہ چیز سمجھ سکتے کہ تمہاری عورت گھر بیٹھی ہے اور تم دوسروں کے ساتھ گھومتے رہو تو وہ کیا فیل کرے۔ جلدی شادی کر لو۔ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، شادی ہے وہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ جو شادی کے لائق ہے اور شادی نہیں کرتا، نبی کے کہنے کے حساب سے اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ شادی میں بہت دکھ ہے، مگر اس کی جو کمپنسیشن ملتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ شادی کے اندر عورت کی سب چیزیں اٹھانی، ناز اٹھانے، بچوں کے لیے دکھی ہونا، کمائی کرنا، بیماری شماری اس کے لیے، میرڈ لائف میں جو تکلیفیں اور پرابلمز ہیں، ان تمام تکلیفوں پرابلمز کو خدا کی طرف سمجھ کے جو آدمی راضی خوشی سے اٹھاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، عبادت میں فائدہ ملتا ہے، بہت فائدہ ملتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی پاک ہوئے۔ جو اپنی عورت کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کے پیچھے گھومتا ہے، اپنے مرد کو چھوڑ کے دوسرے مردوں کے ساتھ دوستی لگانے والی بھائیاں ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں، اور ان کو عبادت میں نقصان ہوتا ہے، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، خدا ان پہ ناراض ہوتا ہے، اور ان کے اوپر کبھی کبھی بڑی بلائیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو۔ کلین اور صاف زندگی ایک مومن کے لیے ضروری ہے، پیور بنو۔ Besides being faithful to your wife, spiritually advancement is it is marriage necessary? کارن کہ it is necessary. Married life, clean, good married life helps your advancement in ibadat, and you get many bounties, bakshish, gifts. You will get lot of experience and benefits in ibadat. It's not to be disclosed. Once I was involved with one of my friends, yeah, he was asking me, do you believe in God? And I said, yes, sure, I do. And he was asking me, what do you think about Jesus? He's the Son of God. But do you believe in him or not? I said, we don't believe in him. He was asking me, why not? He's the Son of God. And don't you think he's going to come back? And I said, no. But God is the only one. He is on the earth. He never died. And on the day of judgment, he will be there. And you should, ask someone, religion that's about this. If Jesus is the Son of the God, and if he is, he's going to come back or not. So if you can explain me about that, please. You should read our Islamic and Ismaili philosophy and history. Mind you, we don't deny Jesus. Jesus was a prophet, and if a Muslim does not believe in Jesus as a prophet, he loses Iman and he is not a Muslim. Jesus was a prophet of God, but naturally and certainly we don't believe that he was a son of God. But it is a belief of Christians, and we don't bother for Christians. Let them have their belief with them and our belief with us.
But we Muslims, we believe Jesus was a prophet. Never debate with a person on the subject which you don't know. If anyone comes to me and he puts any question about, say, mechanical engineering, I don't know, I can't discuss the matter with him. Or if someone comes and asks me about the thing that I don't know, how can I just give him answer? How can I debate with him? How can I discuss with him? Therefore, always shun all those things which you don't know and never discuss anything which you don't know. Well, and that's actually good that. This is why I want to go to religion. And they're feeling like there's other people around them, everybody bothering the Catholic. And well, I can, I'm not trying to find that I want to change the job, but for some religions I can do that. They always bother with religion. So they want to know, there's some answers to know about something. That's why I'm looking for Muslim Islam. Instead of asking about what's Islam, it's not a politics. I don't know if it's politics. When they're telling about the Muslims and these and that. So, I don't know about that much. And, to be honest with you, I don't know about that much about my own. Don't know? Read some good books, prepare yourself, and then go and fight. You have no sword, you have no any kind of mount, you have no shield to protect you, and you are going in a war without any banduk. Prepare yourself and then discuss it. If a man does not want to eat, what are you going to do with him? Putting some grub in his mouth forcibly, it is not possible. Never discuss religion with others unless you have studied your own and his religion. अगर कोई अपने रिलीजन के बारे में पूछे और उसको नहीं बताना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस बात पे हम लोग डिस्कस नहीं करना। हाँ, बराबर कह सकते हैं उसको। बोलो, listen, about religion I don't want to discuss anything. Bas, full stop. सफाई वगैरह होती है तो 2 दिन के बाद में बड़े होते उसकी पूरी वगैरह समाज में देखते जैसे टाइम शिकार होती है तो कभी भी ये नहीं सुनी कि आप इतनी चीज से जितनी आप खा सकें। उससे क्या होता है कुछ खराब होती है और फिर निकलने से भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या ये किसी से इतना अच्छा है कि दूसरे दिन तो क्या होता है। सुकृत तो सुकृत ही रहती है, अगर सूख जाए तो वो सुकृत है, लेकिन इसकी बड़ी इज्जत करो। और जो बच्चे सुकृत लेके फेंक देते हैं उसका गुनाह उनके माँ बाप के ऊपर है, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, उन्हें माँ बाप ने तालीम नहीं दी। मौलाना इमाम सुल्तान शाह फरमाया कि जो लोग बेईमान हो जाते हैं उनका गुनाह उनके माँ बाप के ऊपर है कि उन्होंने इनको तालीम नहीं दी। और सुकृत देने वाले जो हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे हैं, उनको चने जितनी सुकृत दो ताकि वो इतना ही लेके खा जावे। और बच्चों को कहो अगर तुम्हें सुकृत लेनी है तो थोड़ी सी लो जितनी तुम खाओ, मगर उसकी बेअदबी न करो। ये माँ बाप सिखाएं और क्लासेस के अंदर जो रिलीजन टीचर्स हैं उनका फर्ज है कि वो सिखाएं। हाजिमा की रिसेंट विजिट थी ना शिकागो के अंदर और यूएसए के अंदर, तो उसके प्रिंटेड फरमान है कहीं पर अगर चाहिए तो नहीं, उसका प्रिंटेड फरमान नहीं है क्योंकि ये तरीका बोर्ड की ड्यूटी है। अब वो जाने, उनकी तरफ से मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, मगर प्रिंटिंग में नहीं है। कोई चीज चाहिए तो तरीका बोर्ड को खत लिख के
शायद वो तुम्हें कोई कॉपी भेज सके। આજે સાલોથી હું જોતો આવ્યો કે સુગ્રીવ છે એ રવાની બનતી હતી. રિસન્ટલી હમણાં રોટલીના લોટની બને છે. તો કોઈ હાથીમાં એવા ઉપમાન છે કે કોઈ હોય તો કોઈ કારણ એવું છે કે જેથી કરીને આ સમસ્યા હોય? ये जो चेंज है वो कोई फरमान के तहत में नहीं, सुकृत बनाने वाले या उम्मीदवार की खुद की मर्जी के ऊपर है। पीर ने तो ये कहा है कि गेहूं का लोट होवे, वो रवा होवे कि आटा होवे, अब ये बनाने वाले की नीयत के ऊपर है। मगर पीर ने उसका जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं तो वो ये है कि थोड़ा सा उसमें दूध डालना चाहिए और बटर होना चाहिए, मार्जरीन नहीं। खंड डालो और लोट होवे गेहूं का, रवा होवे। नहीं, कोई तफावत नहीं। बने चीजों ઘઉંમાંથી નીકળે છે, રવા જરાક જાડો છે, સ્વાદિષ્ટ છે અને આટો એવો છે, એ બનાવવા વાળા ઉપર છે, એમાં કઈ ફરક નથી, પણ એમાં ન્યાઝ હોવી જોઈએ। જો ન્યાઝ નથી તો એ શીરો છે, સુકરીત નથી। અને સુકરીત અગર બચી જાય તો એની કોઈ દિવસ નાંદી ના કરવી જોઈએ, કારણ કે એ સુકરીત છે, શીરો નથી। जो नांदी होती है तो बंद होनी चाहिए, क्योंकि न्याज अगर बच जाता है तो नांदी नहीं होती। हम न्याज सबको पिला देते हैं, तो सुकरीत में न्याज होने की वजह से हम उसकी नांदी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें न्याज है। इसलिए अगर सुकरीत बच जावे, बांट दो लोगों को, और दूसरे दिन से सुकरीत कमती बनाओ, आधी बनाओ, थोड़ी थोड़ी दो। ऐसा नहीं है कि आदमी को ये इसमें नाश्ता मिल जाए, मगर सुकरीत की नांदी नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल है ज़कात के बारे में। ज़कात जो है पाकिस्तान से रवाना जैसे आते हैं, तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, किस तरह देना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर तुम दसवन देते हो तो तुम्हारी ज़कात इसमें आ गई। दसवन में दो चीजें हैं, 10वां हिस्सा उश्र, वो अल्लाह अली का हक है, और 2.5% वो पीर का यानी मोहम्मद के नूर का हक है। इसके लिए ज़कात आ गई। जो 10वन देता है उसके ऊपर और कोई चीज लाजिम नहीं। और इस उधर मुसलमान जो हैं वो 2.5% ज़कात देते हैं, उनको उन्होंने पुअर टैक्स समझ लिया है, हालांकि ज़कात पुअर टैक्स नहीं है। वो तो दीन को एस्टेब्लिश करने और दीन की मदद करने के लिए 2.5% दिए गए हैं। 10वन के अंदर ज़कात इंक्लूडेड है। तुम्हें 10वन दिया, फिर ज़कात की कोई जरूरत नहीं। तुम देना चाहो तो तुम्हारी खुशी है, मगर तुम्हारे ऊपर कोई फर्ज नहीं। वो जो अपनी इबादत है उसके ऊपर जो हमारी खुराक है उसका क्या असर होता है, तफसील से बताएंगे जिसम से और हमारे नफ्सियात से। और खुराक का रूहानियत के ऊपर बहुत असर होता है। जो लोग बहुत गोश्त खाते हैं वो लोग ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इसलिए सादा सिंपल खाना खाने से जो खून है वो भी पुरसुकून होता है, और ये खून जब ये बारीक बारीक नसीजों में ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के अंदर भी सुकून होता है। इसी नजरिए से गुरपीर हसन कबीरुद्दीन ने सारी जिंदगी गोश्त नहीं खाया। 111 बरस की उम्र थी गुरपीर हसन कबीरुद्दीन की। इमाम सुल्तान महमूद शाह ने भी गोश्त खाने की मना की है, लेकिन फरमाया कि बिल्कुल बंद न करो, थोड़ा सा खाओ, मगर ज्यादा गोश्त मत खाओ। मसाला, चटनी, मिर्च, खट्टी चीजें, गोश्त वगैरह, ये चीजें इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर करती हैं, ब्लड को हीट अप कर देती हैं, ब्लड के बहुत से अज्जा जो हैं वो खराब हो जाते हैं, और इससे ब्रेन की जो सप्लाई होती है उसमें भी फर्क पड़ता है, और ब्रेन की
हालत और फंक्शन के अंदर फर्क पड़ता है। तुम अपनी गाड़ी के अंदर लेडिड पेट्रोल डालो और अनलेडिड डालो, उसमें फर्क पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है। तुम टैक्सी चलाते हो, मुझे पता नहीं है कौन सा तुम गैस यूज करते हो, लेकिन गैस की क्वालिटी से उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। यही हालत इंसान की मशीनरी का है। मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि 10% मच्छी और चिकन खाओ और 30-40% फ्रूट खाओ, 50% वेजिटेबल खाओ। मेरी एडवाइस ये है। और जहां तक बन सके ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कमती खाए जाए, क्योंकि हम मोस्टली ब्रेन का काम करते हैं, लेबर वर्क हमारे अंदर नहीं है। कोई पत्थर तोड़ने वाला या जमीन को टिल करने वाला हमारे यहाँ नहीं है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स की हमें जरूरत बहुत कम है जरूर थोड़ी, लेकिन ज्यादा नहीं। प्रोटीन ज्यादा खाओ। बेस्ट चीज जो है ब्रेन की, वो इबादत की हालत में मदद करने वाली है, तो उसके लिए नट्स खाओ, बादाम है, पिस्ता है, सूखा मेवा जरूर थोड़ा खाओ। 50%, 60% वेजिटेबल खाओ और 30-40% फ्रूट खाओ, इंक्लूडिंग ड्राई फ्रूट। सिर्फ 10% मच्छी और चिकन खाओ। रोजे की मदद में जो गटपाट खुलता है, खास रीजन है इसका, मतलब के दौरान होना चाहिए गटपाट। बात ऐसी है कि रोजे की मजलिस आजकल हम जमात के साथ बना लेते हैं। हकीकतन ये है कि रोजे की मजलिस सुबह 10-10:30 बजे होनी चाहिए और उस वक्त गटपाट नियाज की सेरेमनी होती है। शाम के वक्त हम लोग उधर कनाडा में और इसके पहले या आज भी अफ्रीका के अंदर, इंडिया के अंदर शाम को अगर मजलिस हो गए रमजान महीने की वजह से, तो 2 दुआएं पूरी हो जाएं, उसके बाद मजलिस शुरू होती है। फिर नांदी होवे या ना होवे, मगर 2 दुआएं पूरी हो गई तो हमारे जो जमात के मुखी हैं वो फिर रोजे की मजलिस वाले मुखी को अमर देते हैं कि तुम अभी अपनी मजलिस शुरू करो। तो उस वक्त गटपाट की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि गटपाट का ताल्लुक मजलिस के साथ है, जमात के साथ नहीं। लेकिन अगर जुमे का दिन आ गया, जुमे का दिन है और रोजे का दिन भी आ गया, तो फिर चालू मुखी कामड़िया का जमात का हक है कि वो घटपाट की स्थापना करे, रोजे की मजलिस का हक उड़ जाता है। हमारे मजहब में कितनी क्रियाएं हैं और रोज उनको कौन सी क्रिया करनी फायदेमंद है? हमारे मजहब में जितनी भी क्रिया हैं वो तुमको तो मालूम है, और हर रोज जिस तरह से जो जो क्रिया होती हैं वो जमात खाने में होती हैं और वो सब करनी चाहिए बेलाशक। जैसे मुश्किलात आने मेहमानी के पैसे डालते हैं, रुहानी की दुआ, अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो मुश्किल आसान की तस्वीर निकलवाओ, नहीं है तो ना सही, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल चीज है। और मेहमान रूहानी की भी अगर तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हारे गुजरे हुए दादा दानी या आबाओ अजदाद हैं उनकी रूहानी की करनी है तो तुम करो, नहीं करनी तो ना सही, उसमें कोई फोर्स नहीं। इसी तरह से तुम्हारा दिल चाहता है कि मैं मौला की मेहमानी करूं तो करो, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाहता ना करो, फोर्स नहीं है। लेकिन दसवंद और दुआ 2 चीजें ये ऑब्लिगेटरी हैं, वो तुम्हें करनी ही चाहिए। एडिशनल करते हैं
तो ये मेहमानी में क्या फर्क है? जो लोग रोज मेहमानी लाते हैं, वो लोग जो मेहमानी दिखाते हैं, वो लोग जो खाजा खुराकी दिखाते हैं, देखो, खाजा खुराकी और मेहमानी में फर्क ये है कि हाजिर इमाम के पास घर जाके तुम अपने घर से कोई चीज पका के मौला के घर ले जाओ और मौला को कहो मौला मेहमानी लाया हूँ खा, ये मेहमानी है। लेकिन तुम मौला को जाके कहो मौला मेरे घर पे आके खाना खाओ, तो ये खाजा खुराकी है। मौला तुम्हारे घर आके खावे, ये खाजा खुराकी है। मगर तुम मौला के घर में खुद अपने घर से पका के लेके जाओ, ये मेहमानी है। अभी जैसे तुम्हारी खुशी ऐसा करो। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कोई चीज है या फिर कपड़े होते हैं? ये बात ऐसी है कि ये चीज जाहिर में बोली नहीं जा सकती। हर एक इंसान को खुद को इसका तजुर्बा होता है, और मगर ये चीज है, सही चीज है। तो उसके लिए टेक्निक भी तो होगी ना, खाली है बस ढूंढो उसको, तो बता भी नहीं रहेगा। ढूंढने से मिलेगा ना। तो सवाल क्या है आपको पता होगा? मैं बता नहीं सकता, तुम ढूंढो उसको। आप 10 बराबर दो, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, अमाल नेक करो, सुबह की इबादत करो, फरमान बरदारी करो, तो मौला किसी दिन खुद ही ये टेक्निक बताएगा। ના કહી શકીએ, જો કે છે ગપ્પા મારે છે। એ ગપ્પા છે। કેનેડામાં એક માણસ હતો, ગુજરી ગયો થોડા ટાઈમ પહેલા। એને 7-8 ચોપડીઓ લખી। એની એક મશહૂર ચોપડી ધી થર્ડ આઈ, લોબ્સંગ રેમ્પા, એની બધી ચોપડીઓ મેં વાંચી છે। ઓહો, જે વાંચનાર છે ને એને ચોપડીઓ વાંચવાથી એ સમજે કે હું 7મા આસમાન ઉપર પહોંચી ગયો। મેં એક વખત લોબ્સંગ રામપાને એક કાગળ લખ્યો હતો, તો એ વિચારો કહે છે કે આ તો બધું મેં ટ્રાન્સલેશન કરીને દીધું છે, મને કોઈ એક્સપિરિયન્સ નથી। તે આવા ગપ્પા તો દુનિયામાં ઘણા છે। એટલે તમે ઘરનું ખાઓ, હોટલમાં ના ખાઓ। ઘરનું ખાવાનું મતલબ એ કે ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રહ્યો ને આ મઝહબની અંદર જે છે એની વાતો કરો, અને હોટલની એટલે બીજા મઝહબની વાતો ના કરો। આ તારો છેલ્લો સવાલ હે? 10 સવાલ તો કર્યા છે। ટેલિવિઝનની અંદર અત્યારે હાલની અંદર જે પ્રોગ્રામ આવે છે એની અંદર એવું મહેસૂસ થાય છે કે પ્રોગ્રામની અંદર હિયર આફ્ટરની ચીન્સ બધા એવા દેખાય છે। તો આવી વસ્તુ આ લોકોના ખ્યાલમાં ક્યાંથી આવે? કોઈ જાતના વાંચી કોઈ એવા કનેક્શન છે લોકોના કે પછી કોઈ હિયર આફ્ટરની બાબતમાં દરેક મઝહબની અંદર ચીજો છે। અને હવે જે જિજ્ઞાસુ હોય છે, જે માણસ રિસર્ચ કરે છે, પછી એ કાફર હોય કે મોમન હોય, જે માણસ મહેનત કરે ખુદા એને આપે છે। એ લોકોને ઘણી ચીજો મળી જાય। ગયા વીકમાં જ, ગયા વીકના નહીં પણ ગયા મહિનામાં 2 કલાકની મારી એક વાઇઝ છે, લાઈફ આફ્ટર ડેથ। એ મેં નોર્થ વેસ્ટ જમાતખાના ટોરોન્ટોમાં કરી હતી। ટોરોન્ટોમાંથી એની ટેપો મળી શકશે। એ તમે સાંભળો। ઇસ્લામ અને ઇસ્માઇલી મઝહબના હિસાબે એમાં ઘણી ઇશારાની વાતો મેં કરી છે। લિસન। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान वालों ने इस तरह से ठीक समझा। वहाँ दूसरी दुआ के बाद खड़े होके
गिरियाजारी की तस्बीह निकलती है, यहाँ हम पहली दुआ के बाद गिरियाजारी की तस्बीह निकलती है। बात ऐसी है कि 1899 में 1899 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब ये अफ्रीका गए तो साहब 2 महीने ज़ंज़िबार में अफ्रीका में ठहरे, मोस्टली ज़ंज़िबार में। उस वक्त सारे अफ्रीका की सबसे बड़ी जमात ज़ंज़िबार में थी और ज़ंज़िबार हेडक्वार्टर था। वहाँ माँ बाप तकरीबन 40 दिन ठहरे ज़ंज़िबार में और बाकी 20-22 दिन दूसरी जगहों पे गए। मौला हर रोज जमात करने आते थे और वो ज़माने के अंदर मौला ने बहुत से हमारे सिस्टम चेंज किए, तो उस सिस्टम के ऊपर अफ्रीका की जमात चलती रही और वही सिस्टम अफ्रीका वाले जब माइग्रेट होके इधर आए तो उसी सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं कि जो आज से 90 बरस पहले इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने लगाया था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1905 के अंदर 4 तस्बीहां जो आजकल हम सुबह निकालते हैं, उस वक्त वो शाम को निकलती थी। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमान 1905 में किया कि आज से ये तस्बीहां सुबह की दुआ के बाद निकाला करो। इंडिया पाकिस्तान के अंदर उस जमाने में पाकिस्तान नहीं था, ये तस्बीहां कभी नहीं पढ़ी जाती थी, मगर अफ्रीका में पढ़ी जाती थी फरमान के हिसाब से। और 46 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान वाले इधर आए अफ्रीका में, डायमंड जुबली के टाइम पे लगभग 400 आदमी आए, तो उन्होंने अफ्रीका की जमात और खानों के अंदर ये सुबह 4 तस्बीहां देखी, तो उन्होंने मौला के पास अर्ज की, तो मौला फरमाया अच्छा तुम भी निकालो। तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर अभी 4 तस्बीहां सुबह की निकलती हैं, मगर 1899 नहीं, लेकिन 1860 से या 61 से आगा हसन अली शाह ने फरमान किया था अफ्रीका वालों के लिए, इंडिया पाकिस्तान वाले के लिए नहीं था। एक और चीज है, नैरोबी सारी दुनिया में एक ही जगह है कि जिधर जमात में हजरत इमाम ने सुल्तान शाह ने फरमान किया कि लाइफ के मेंबर हर जुमे के दिन, जुमे की रात को लाइफ का छांटा लिया करो, एवरी फ्राइडे। और नैरोबी के अंदर आज तक ये एवरी फ्राइडे लाइफ का छांटा जमात में लेते हैं। एक साइड में लाइफ के मुखी कामड़िया बैठे होते हैं, तो लाइफ के जो मेंबर होते हैं वो छांटा लेते हैं, मगर ये फरमान दुनिया में और कई जमात में नहीं है। तो ये तो अभी इमाम की मर्जी है। पुराने हिसाब से इंडिया पाकिस्तान में पहली दुआ के बाद तस्बीह नहीं निकलती, दूसरी दुआ के बाद निकालते हैं, लेकिन हम इधर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान से पहली दुआ के बाद निकालते हैं। ये जो सिस्टम अफ्रीका का सिस्टम है, सुल्तान मोहम्मद शाह ने बना के दिया है ना। पीर की मेहमानी तो बहुत पुरानी चीज है और हिंदुस्तान पाकिस्तान में आज भी है। पीर की मेहमानी तो 900 साल से पीर शमस के जमाने से हुक्म किया गया। पीर की मेहमानी जो है वो 2 रोटियां, चाहे वो बाजरे की हों, गेहूं की हों, बेसन की हों, चावल की हों, 2 रोटियां और उसके ऊपर या पानी की चीज यानी मछली और या जमीन से निकली हुई भाजी, बकाला, वेजिटेबल। उसके ऊपर ये मुर्गी, कुकड़े वगैरह ये नहीं चले और गोश्त भी नहीं चले। पीर की मानी अभी ये है ना, ये इस वाली तरीके का काम है। मिशनरी जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, अमल में लाना मिशनरियों का काम नहीं। ये इस्माइली तरीका के साथ मेल के लिखो एक खत उस वक्त। देख, मैंने तुम्हें अभी जवाब दिया कि जो सिस्टम अफ्रीका का है वो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने बना के दिया है। पाकिस्तान क्या करता है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तुम्हें 3 दफा कहा कि सुल्तान मोहम्मद शाह ने बना के दिया। अभी तुम वापस मुझे पूछती हो कि ये नोट की कीमत क्या है। मैंने नोट तो तेरे सामने रखा है। मेरा क्वेश्चन शायद रिसीव हो। ये क्वेश्चन यही है कि यहाँ टीवी पर बहुत प्रोग्राम ऐसे आते हैं जो लाइफ के बाद या मेडिटेशन या कैलिफोर्निया में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती हैं जहाँ योगा, मेडिटेशन और
ہر طریقے کا وہ سکھاتے ہیں کہ کیسے بیٹھ کر میڈیٹیٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں برہم کا پرکاش میں بھی کچھ ہے، کیونکہ مجھے تو گجراتی نہیں پڑھنی آتی، اس لیے مجھے انفارمیشن نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے باتیں کرنے ہیں. حضرت امام کا فرمان ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا، مگر کچھ بیٹھ کر کس طریقے سے بول کو بولنا چاہیے، کس چیز سے کیسے کرنا چاہیے، اس پر کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ جو ٹی وی وغیرہ اور اس کے پروگرام کی بات کرتے ہو، اس کی طرف اپنا دل مت لگاؤ. بات ایسی ہے، ہم اپنے مذہب کے اوپر ہیں، ہمیں اپنے مذہب کی ہدایت پہ چلنے چاہیے، اور دوسرے مذہب یا غیر مذہبوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جانا چاہیے. اب یہ رہی بات بیٹھک کرنے کے طریقے، ہمارے امام کے فرمان میں ہے کہ تم بیٹھو اور اس بول کے اوپر دھیان لگاؤ، کنسنٹریٹ کرو. کبھی تمہاری کنسنٹریشن نہیں بھی ہوتی، حضرت امام فرماتے ہیں پھر بھی تم عبادت میں بیٹھو اور خدا سے اس بات کے لیے امید رکھو، تو کبھی نہ کبھی تمہیں بخشش دی جائے گی. ہمارے ہاں ٹیکنک کی بات بعد میں، یہاں تو بخشش کی بات ہے. اس لیے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، اور لوگوں کی بتائی ہوئی ٹیکنک وغیرہ کچھ نہیں. گنانوں کے اندر ہے، واضح سنو. وعظوں کے اندر بھی بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں، اور خاص طور پہ جب بول ملتا ہے تو مشنری اس وقت ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ڈالا گیا مولا کا، اگر کسی مشنری نے نہیں بتایا تو اس کو گناہ اس مشنری کے اوپر ہے. اس مشنری کا فرض ہے کہ بول کا مطلب بھی بتائے اور بیٹھک کرنے کا طریقہ بھی بتائے. نہیں بتایا گیا تو یہ کم نصیبی ہے. مگر الحمدللہ میں نے بہت سی اپنی وعظوں کے اندر بیت الخیال کی عبادت کے بارے کے اندر بہت سی واضح کی ہیں. اب یہاں یہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکوں. مائک دو. نہ جو مشکل آسان نہ ہوئے تو نہ دیوا જોઈએ. مشکل ہوئے تو જ દરરોજ ખામખા દવા ખાવાની જરૂર શું. મુશ્કેલ સ્થાનની તસબીહ એ કોઈ ટોનિક નથી કે રોજ એક વિટામિનની ગોળી ખાવી જોઈએ. હા, રોજ દુઆ જરૂર કરાવી, તોબો તોબો બંદો ગુનેગાર છે એ જરૂર કરાવી, એ ટોનિક છે. મુશ્કેલ ના હોય તો મુશ્કેલ આસાનની તસબીહ ન કઢાવી. હા, એ પૈસા જ છે ને. પૈસા આપે તો તસબીહ તો નીકળે છે ને જમાતખાનામાં. દરરોજ જે તસબીહ નીકળે છે ઉભા રહીને, એ મુશ્કેલ આસાન અને ગુનાહની માફીની તસબીહ છે. કોઈ માણસ પૈસા આપે કે ન આપે તો પણ આ જમાતમાં જે તસબીહ છે એ આવવાવાળી મુશ્કેલોને દૂર કરવા માટે છે. જમાતની ચાલુ તસબીહ. પણ જો કોઈ માણસ ઉપર એક્સ્ટ્રા કોઈ મુસીબત આવી જાય તો પછી એ મૂકીને પૈસા ભલે આપે તો એ તસબીહમાં એ શામેલ થઈ શકે. પણ જો મુશ્કેલ ના હોય તો મહેમાની કરો, મુશ્કેલ આસાનના પૈસા નહીં. મુશ્કેલ ન હોય તો પણ શા માટે દવા ખાવી? કારણ કે આવવાવાળી મુશ્કેલો માટે ચાલુ તસબીહ જે જમાતખાનામાં નીકળે છે એ આખી જમાત માટે છે. જે માણસો ઘર બેઠા છે એ એમાં સામેલ નથી થતા. જમાતખાનામાં આવે છે એ જ સામેલ થાય છે. બોલ. अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो जरा डिफरेंट है. सब इस्माइली जो है हाजिमाम के वहाँ ही बच्चे हैं, और ये जो नॉन इस्माइली हैं वो भी हाजिमाम के वहाँ ही बच्चे हैं. जिन्होंने हजर इमाम की बैयत की है वही हजर इमाम के रूहानी बच्चे हैं. जिन्होंने बैयत नहीं की, उन्होंने इमाम को अपने इमाम के तौर पे माना ही नहीं, तो वो रूहानी बच्चे कैसे? वो रूहानी बच्चे नहीं है. मखलूकात में आते हैं, रूहानी बच्चे नहीं. अच्छा, तो उसको फिर क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो उसी रूप से है ना.
बस उनको हम यही कहें कि खुदा ने उनको पैदा किया, जरूर इंसान खुदा ही के पैदा किए हुए हैं, लेकिन रूहानी बच्चे वो हैं कि जो इमाम की बैत करते हैं। और एक अभी नांदी के बारे में सवाल किया था, तो आपने कहा था कि नांदी वो है जो जमात, वो मेहमानी वो है जो जमात खाने में पेश की जाती है और नांदी जो घर में बुलाते हैं, तो ये वो हादा हो रही है। तो जब दुआ मांगते हैं तो कहते हैं कि जिस किसी ने भी मेहमानी या खादा खुराकी पेश की हो तो उस वक्त खादा खुराकी का वर्ड यूज करना सही है या नहीं? जिसने खादा खुराकी के पैसे दिए हैं उसके लिए ये अनाउंसमेंट होता है। हम जो नांदी अपने घर से मेहमानी के तौर पे ले आते हैं, ये खादा खुराकी नहीं है, ये मेहमानी है। तो खादा खुराकी के पैसे वो मुखी को पूछना। છેલ્લો સવાલ હે, જેને સવાલ કરી લીધા છે એને પછી ધ્યાન રાખવું જોઈએ, બીજાને ચાન્સ આપે. કોઈ બી ફેમિલીમાં નથી જાય તો આપણે એના માટે ધર્મ ક્રિયા જે પ્રમાણે આપણે રીત રિવાજ છે એ પ્રમાણે બધું ઘણી વખત એવી રીતે થાય કે એની પાસે કોઈ ભાઈ માણસ સુધી જાય તો ભાઈ માણસ થાય કે અમેરિકા જેવી કન્ટ્રી છે, કાલે સવારે હું મરીશ તો મારી પાસે તો કોઈ દુઆએ નહીં કરાવે. તો એની જીવ પોતે હજી તો હયાત છે, એની હયાતી દરમિયાન બધું પોતાનું બક્ષાવી શકે છે. હા, અમારી પ્રણાલિકામાં, અમારા મઝહબમાં એ છે કે હું પોતે મારી મોત પછીની બધી ક્રિયાઓ મારી હયાતીની અંદર હું કરાવી શકું, અને મુખી કામડિયાને સત્તા છે કે એ કબૂલ કરે, થઈ શકે છે. ઓનલી મુખી જમાતના મુખી કામડિયા. પીરની માનીનું હક સિર્ફ મુખીનું છે. જમાત એ કહી શકે છે કે મુખી સાહેબ આ મારા $1-2 છે, તમે જયારે મેં પીરની માની બનાવો તો એમાં વાપરો, ધેટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ. પણ કોઈ પણ જમાતનું માણસ પોતાના ઘરથી પીરની મહેમાની ન લઈ આવી શકે, એ મુખીનું જ એક એલોન પ્રેરોગેટિવ છે. अभी तू क्या बोलता समझ नहीं आती. હવે એમ છે કે મારો કામ એ છે કે હું લો બતાવું, અને લો ઉપર કોણ ચાલે ન ચાલે એ હું પોલીસનું કામ નથી કરતો. यानी क्या पक्के मुसलमान सुन्नी होते हैं, दूसरे कच्चे होते हैं? मतलब कि काफी डिस्कस करते हैं मतलब के ऊपर ना. तो आजकल जो रमजान का महीना चल रहा है, तो सुबह को क्या होता है, जब मैं जॉब पर जाती हूँ तो एज अ रिस्पेक्ट मैं उनके सामने खाती नहीं, और जब वो पूछते हैं कि आपका रोजा है तो मैं ये बोलती हूँ कि हर मुसलमान का रोजा जो है वो 365 डेज होता है. और तो वो बोलते हैं अच्छा फिर तो आप लोग भी रोजा वगैरह रखते हैं. मैंने बोला बिल्कुल रखते हैं, लेकिन रोजा तो मैं रखती नहीं. नाइट ऑफ ना तो मीठी तो फिर नहीं करती इतना, क्योंकि बोला तो वो सोचती हूँ, लेकिन क्या ये एम आई लाइंग टू देम? बात ऐसी है कि हम इसमाइलियों ने एक रॉन्ग इम्प्रेशन ले लिया हुआ है कि रोजे हमारे ऊपर फर्ज नहीं. मैं ये कहता हूँ कि रोजे हमारे ऊपर फर्ज हैं, मगर मुसलमान भी थोड़ा रॉन्ग हैं. खुदा ताला ने रोजों के सामने एक ऑप्शन भी रखी है. ज़कात और नमाज में कोई ऑप्शन नहीं, वो ऑब्लिगेटरी है. लेकिन रमजान महीने के रोजे रखने के लिए अल्लाह ने फरमाया, और फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती करना नहीं चाहता. अगर तुम रोजा नहीं रख सकते तो एक मिस्कीन को खाना खिलाओ, तो तुम्हारा रोजा न रखने का जो जवाज पूरा हो जाए. मैं मिशनरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पक्का
मुसलमान हूँ, इस्माइली हूँ, मौला का गुलाम हूँ, रमजान महीने के अंदर मैं रोजे रखता हूँ। हाँ, जब मैं मुसाफरी पे सफर पे होता हूँ तो नहीं रखता। और हमें रमजान में रोजा रखना चाहिए, क्यों नहीं? कभी नहीं रख सकते तो किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ, मगर मिस्कीन का मतलब ये नहीं कि वो खाना जमात खाने में मत लाना, मिस्कीन को खिलाओ। अब यहाँ अमीन कहता है कि मिस्कीन कोई नहीं, मिस्कीन बहुत है, बहुत है। इधर इतने बहुत गरीब हैं कि जिन बेचारों के पास खाना नहीं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो उनको फूड बैंक्स वगैरह के अंदर खाना पीना देते हैं, उनको 2, 5, $10 भेज दो। हाँ, एनीवन। हाँ, अल्लाह ने मिस्कीन कहा है, उसके अंदर काफिर मिस्कीन भी हैं। तो दूसरी बात यह है कि मुसलमान जब पूछते हैं कि तुम रोजे रखते हो, कहो कि हाँ बहुत से लोग रखते हैं, कभी मैं रखता हूँ कभी नहीं रखता, मगर हम रोजे रखते हैं। हमारे बहुत से इस्माइली भाई जवाब देते हम रोजे नहीं रखते। ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम रोजे रखते हैं, हज को भी जाते हैं, लेकिन खुदा ने उसमें ऑप्शन दी हुई है, हम उस ऑप्शन का फायदा उठाते हैं। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मौला की रहमत से मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक तमाम मुसलमान मुल्क मैंने देखे हैं। आज 80 नहीं 90% मुसलमान रोजे नहीं रखते। ओनली 10-15% ही मुसलमान हैं जो रोजे रखते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लाल पर्दा डाल के दोपहर को लोग अंदर छुप के खाना खाते हैं। तो रोजे हैं, हम इस्माइली भी रखते हैं, बहुत से नहीं रखते, इस तरह बहुत से मुसलमान भी नहीं रखते, मगर रोजे रखने चाहिए अगर बन सके तो। अगर किसी को ये बोला जाता ना कि हम लोग में रोजे रखते हैं, मतलब कोई रखता है कोई नहीं रखता है, तो मुसलमान लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि तुम लोग कैसे मुसलमान हो, तुम लोग के रोजे नहीं, उनके सामने कहो कि तुम्हारे अंदर कितने लोग रोजे रखते हैं। वो लोग कहते हैं कि 12 साल की उम्र में ना रोजे फर्ज हो जाते, तुम लोग कैसे मुसलमान हो? तुम यानी तुम उनके सामने उनको कहो कि कितने मुसलमान रोजे रखते हैं। तुम उनको सामने कहो कि मेजॉरिटी मुसलमान रोजे नहीं रखते, और हम तो बहुत फिर भी बहुत रखते हैं। हमारी ये दुआ नमाज है, उनको बराबर कहो ना, उनको कहने की जरूरत है। उसको बोला नमाज पढ़ते हैं, हम अपने तरीके से पढ़ते हैं, मगर पढ़ते हैं। देखो, शिया मजहब के अंदर उनको कहो हम शिया हैं। शिया मजहब के अंदर जमे बैनुल सलातैन यानी नमाजों को मिला के पढ़ने की शियों में रिवायत है, सुन्नी नहीं करते। उनको कहो हम शिया हैं, हम बहुत सी नमाजों को ज्वाइन करके पढ़ते हैं, यानी एट ए टाइम हम 2-3 नमाजें साथ भी पढ़ते हैं। और हदीस के अंदर इस बात की इजाजत भी है जो मुसलमानों को पता नहीं। और ये आर्गुमेंट करने वाले जितने मुसलमान हैं वो सब बेइल्म है, अगर उनको इल्म हो तो कभी सवाल न करें। ये जो मुश्किल आसान की बात वो हम लोग बहुत बार कहीं फ्लाई करते हैं, जैसे कहीं बाहर से लगे स्टेट छोड़ के पाकिस्तान जा रहे इंडिया जा रहे, तो 100 रुपये की मुश्किल आसान मुफ्ती साहब द्वारा जाके मुश्किल आसान का वो देते और छाटा या जो भी दुआशीत मतलब देते मुफ्ती साहब से देते हैं। ये सही है करना? और बहुत जैसे हम लोग बहुत से यहाँ से पाकिस्तान इंडिया से आए हुए हैं, तो कभी दिल घबराता है, पता नहीं ख्याल कैसे आते हैं, तो जाकर मुफ्ती साहब को दुआ दे देते हैं और मुश्किल आसान की दुआ देते हैं। तो ये करना राइट है या? देखो, जो मुसाफरी के ऊपर जाग के वक़्त हम जो मुखी के पास जाके 2, 5, 10, 20 सेंट दे के हम करते हैं, वो मुश्किल आसान की तस्बीह नहीं है, वो वोरावे की तस्बीह है। वोरावा ये होता है कि मुखी साहब मैं सफर पे जाता हूँ, दुआ कीजिए कि सही सलामत मैं वापस आऊँ। वोरावा कहते हैं वापस आने को, क्या कि मुझे रास्ते में कोई मुश्किलात न नड़े। वो मुश्किल आसान की तस्बीह नहीं है। तो और ये वोरावा देना हमारी रिवायत है, और हम जब मुसाफरी पे जाते हैं
तो उस वक्त वो रावा दिया करो, अच्छी चीज है। और दिल घबराता होवे तो सलवात की तस्बीह पढ़ो, बहुत सलवात पढ़ोगे तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा। मतलब ये कि हम लोग तो नियत कर रहे दिल के अंदर कि मैं सफर पर जा रहा हूँ तो मुश्किल आसन के पैसे दे रहे मुझे साथ को, और नियत कर ली और फिर मुझे साथ दुआ देते हैं, तो इधर वाइज देख क्या करना है? सर्टनली इसमें रॉन्ग क्या है? तुमको क्यों शक आया? नहीं मतलब ये बहुत से जगह ऐसा होता है, पाकिस्तान मम्मी है, सिस्टर्स है, भाई वगैरह ना, तुमको आते हैं कि तुमको किसी ने मना किया कि ऐसा मत करो? ये मुश्किल आसन की जो बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि ये मतलब मुश्किल आसन जल्दी निकल, लेकिन मुसाफरी पे जाना कौन सी मुश्किल है? नहीं मतलब अपने बहुत से इस्तेमाल करते हैं कि मैं जाते हैं तो मतलब सफर अच्छा निकल जाए। मैंने कहा कि हमारे मजहब की रिवायत है कि हम वो रावे के पैसे देते हैं, ये बराबर है, ये बराबर है। हाँ, रिवायत इज ए ट्रेडिशन, इट इज अवर ट्रेडिशन। इफ यू लाइक टू फॉलो फॉलो इट, इफ यू डोंट लाइक टू फॉलो डोंट फॉलो इट, बट देयर इज नो कंपल्शन। मालिक के छाने के बारे में सवाल, मालिक का छाना मतलब क्या है, कौन ले सकता है, how many times people can say in their life, and what does it mean? And I want to ask a question about, and there's some speak about that, why we are paying, and what the stand the fees for, and what does the Malan ka chana mean? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ऐ मुसलमानों, नबी के पास जब भी जाओ कोई सवाल करने के लिए तो पहले नजराना रखो। अभी नबी को या अल्लाह को ये पैसा, ये फी लेने की क्या जरूरत पड़ी? कुरान के अंदर है कि तुम फी रखो। फी क्या है? एक किस्म की सेक्रीफाइस है, ये एक किस्म का नजराना है। मादिन का छांटा मौत के वक्त होता है, या कभी हजर इमाम आते हैं तो जो बूढ़े आदमी हैं, ये मादिन का छांटा बूढ़ों के लिए है, जवानों के लिए नहीं। जिसकी उम्र 60, 65, 70 वर्ष की होती है तो उसको ऐसा होता है हाजिर इमाम आए हैं, चलो मैं मादिन का छांटा ले लूं, वगरना मादिन का छांटा मौत के वक्त होता है। जब एक शख्स नजदीक पहुंचता है मौत के, तो फिर मुखी या कमड़िया उसके घर जाके उसकी मौत के नजदीक उसको छांटा देते हैं। और अगर एक्सीडेंट हुआ या किसी वजह से हाथ फेल हो गया, मौत से पहले छांटा नहीं हुआ, तो मुखी कामड़िया मौत के बाद छांटा देते हैं, वो मादिन का छांटा है। और मुखी और कामड़िया ही दे सकते हैं, दूसरे किसी की ताकत नहीं। हजर इमाम की हाजिरी होती है तो फिर हजर इमाम के पास से बड़ी उम्र के लोग छांटा लेते हैं। मादिन का छांटा का मतलब ये है कि हिसाब किताब का जो दिन है, द डे ऑफ जजमेंट है, उस दिन मेरा हिसाब किताब आसान हो जाए और मौला की दुआ से मैं उससे बच जाऊं मतलब कि खुदा की पनिशमेंट से बच जाऊं। दैट इज मादिन जो छाटो, और उसकी सेक्रीफाइस होनी चाहिए। 23 की रात के अंदर जो छांटा है वो महादिन का छांटा नहीं है। महादिन का छांटा सिर्फ मौत के नजदीक होता है। हाँ, 23वीं रात को बहुत बूढ़ा आदमी है, उसको ऐसा फील होवे कि नेक्स्ट लैलतुल कदर तक शायद मुझे टिकट आ जाए, तो वो छांटा महादिन का ले सकता है मुखी के पास। हाँ, क्योंकि कैप्सूल बन गया, पहले कैप्सूल नहीं थे। अभी एक कैप्सूल के अंदर बहुत सी दवाइयां मिक्स हो जाती हैं। बात तो असल नियत की है। नियत तुम करो, 20 दफा मुखी छांटा देवे या 1 दफा देवे, तुम्हारी नियत होनी चाहिए और वो मौला कबूल करता है। एक लास्ट क्वेश्चन बस। लास्ट क्वेश्चन इबादत के बारे में है, जिसके पास बैतुल का गोल नहीं होता है उसके लिए कौन सी तस्वीर प्रेफर करते हैं? हज़रत इमाम ने फरमाया कि वो या अली या मोहम्मद, या अली या मोहम्मद, या अली या मोहम्मद ये बोले। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा सबका, अच्छी तरह से सवाल किए, जवाब दिए। मैंने अपने इल्म और तजुर्बे से सबको सेटिस्फेक्शन देना तो मौला का काम है। जो कुछ भी मैंने किया, और आप लोग आराम से बैठे, शुक्रगुजार हूँ। मौला आपको सलामत रखे, सुखी रखे,
नेक मुरादें पूरी करे, मुश्किलें दूर करे, इल्म सीखने की तौफीक देवे, रसूल सुप्रीत फरमान बरदारी में रखे, मौला अपनी मोहब्बत अता करे, मौला आपके ऊपर राजी रहवे और मौला ज़ाहिर बातिन दीदार नसीब करे. खाना बतां. आमीन.